نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پچھلی کلاس میں الحمدللہ آپ اور میں یعنی جب اختتام پہ تھے، اینڈ پہ تھے کلاس کے، تو ہم لوگ یعنی را کے جو رول سیکھے تھے، را مخفمہ اور را مرققہ، اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے جو رول کا ذکر کی وہ تھا نبر کا رول۔ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے یعنی کمی کی وجہ سے وقت کی کلاس وقت پر وائنڈ کرنا تھا، تو الحمدللہ اس کا لاسٹ پارٹ جو تھا وہ یعنی ٹھہر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے شاید ایسے محسوس ہوا، پتہ نہیں بعض دفعہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں جلد بازی میں یا سپیڈ بولتے بولتے ایسے نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو یعنی اس چیز کو اچھے سے نہ سمجھا پاؤں، اس طرح کا نہ ہو کہ میں تسلی سے اطمینان سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں، تاکہ الحمدللہ آپ اچھے سے اپنے سبق کو سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، اور قرآن میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نبر کا جو تھا وہ میں آپ کو شروع سے یعنی پھر دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیے تجوید کے بہت سارے رولز ہم یعنی ناموں کے ساتھ نہیں جانتے، لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ کرم تو ہے کہ ہم نے جب قرآن سیکھا ہے تو بہت سارے رولز ہم بغیر اس کو نام کے جانے ہی پڑھ لیتے ہیں، اپلائی کر لیتے ہیں قرآن میں پڑھتے وقت، لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو نام سے یعنی جاننا یا معلوم ہونا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کو ہم بغیر نام کے جانیں تو یہ سمجھے ایک نامکمل سا علم ہے، انکمپلیٹ علم ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم اس کو اچھے سے جان بھی لیں، اس کا نام بھی ہمیں پتا ہو۔ فار این ایگزامپل، اب ایک آپ اور میں اگر کہیں گھومنے جانے کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے، تیاری سب کر لیے، ہم لوگ پیکنگ وغیرہ کر لیے، ٹکٹس کا انتظام کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر ہم وہاں پہ چلے بھی گئے، انجوائے بھی کر لیا، لیکن واپس آنے کے بعد یا جانے سے پہلے اگر ہم اس مقام کا نام ہی نہ جانے تو کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں یعنی ایک تسلی اور اطمینان کے لیے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، دوسری یہ تاکہ ہم اس حساب سے تیاری کریں، جیسے ٹھنڈی جگہ ہے، گرم جگہ ہے، تو یہ یعنی اطمینان پہلے سے ہی ہو جائے تو سفر میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، تیاری بھی اس حساب سے، گرم کپڑے رکھنے ہیں یا
ठंडे कॉटन के कपड़े रखने हैं तो ये वाला मामला। और फिर जब वापस होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और होता है कि अगर किसी को बताना हो उस जगह के बारे में या उसकी खूबसूरती के बारे में, तो ये भी हमें आसानी पैदा कर देगा कि वो जगह पे कहाँ है। और तीसरा ये कि सफर कितना तवील है, यानी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो हमारी जगह से कितना लंबा सफर रहेगा, कहाँ कब तक पहुंचेंगे, तो ये तमाम मालूमात। तो जगह मालूम हो तो बहुत सारी यानी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने के लिए आपको और मुझे यानी बगैर रूल्स को जाने या रूल्स को जानते हैं लेकिन वो रूल्स का नाम नहीं जानते, तो ये समझिए ये भी इल्म आकर नामुकम्मल सा इल्म है। और ये तो ऐसा इल्म है कि जिसका दुनिया और ऐसा इल्म है जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे हमें इसका फायदा पहुंचना है। तो चाहिए कि हम मुकम्मल तैयारी करें और इसको बखूबी जान लें इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये वजह है। अब ये बात मैं इसलिए बताई आपको कि नब्र जो है इसके बहुत सारे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई रूल्स, तो इसमें आप जानते होंगे कि बहुत सी चीजें हम अप्लाई करते हैं, बस हम जानते नहीं थे कि इसका नाम नब्र होता है। ठीक है, और थोड़े कुछ हमारे क्लास में ऐसे बहनें भी होंगी, ठीक है, नाम भी नया होगा सुनने के लिए और रूल्स वगैरह भी नए होंगे उनको। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमारे लिए फायदा ही है इंशाल्लाह। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताई कि नब्र उसको कहते हैं कि अगर कोई वर्ड हो, ठीक है, अगर कोई वर्ड हो, कलिमा हो या लफ्ज हो कुरान में जिसमें हम एक लेटर को, एक कोई ऐसा लेटर या हर्फ उसमें होगा जिसको हम थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में या उसको थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको नब्र कहते हैं। अब जैसा यहाँ पे आप खुलासा देखें, किसी लफ्ज के किसी मखसूस हर्फ या हिस्से पर जोर देना कि बाकी हुरूफ के मुकाबिल इस हर्फ की आवाज ऊंची हो जिस पर नब्र कर रहे हैं। आवाज ऊंची का मतलब पढ़ते पढ़ते हमारी आवाज को एकदम तेज या बुलंद कर देना नहीं, बल्कि एक हर्फ उसमें ऐसा होगा जब वो आपको पढ़ेंगे तो आपको उसकी स्पेसिफिकनेस या उसकी मखसूसियत आपको और मुझे पता चलेगी। ठीक है, तो ये हुआ नब्र। अब नब्र में मैं आपको बताई कि 3 टाइप्स ऑफ नब्र हैं। सबसे पहले आप और मैं जानेंगे कि पहला टाइप कौन सा है, वक्फन और वसलन। वक्फन किसको कहेंगे, स्टॉपिंग रूल को कहेंगे, और वसलन यानी जब मैं और आप कुरान को कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं या कंटिन्यूड वे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको वसलन कहा जाता है, लगातार जिसको उर्दू में कहते हैं। वक्फ माने स्टॉप करना, वहीं पे रोक देना, इसको वक्फ कहा जाता है अराबिक में। ठीक है, तो यहाँ पे वक्फन और वसलन क्यों कहा गया, बिकॉज ये ऐसा रूल जो मैं आपको बताऊंगी ये आपको जब स्टॉप करेंगे तो भी ये रूल नहीं बदलेगा, और कंटिन्यू करके आप आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये रूल नहीं बदलेगा, यानी दोनों सूरतों में ये रूल वही रहेगा, नब्र होगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि वक्फन में भी और वसलन में भी ये रूल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला मिसाल आपको और मुझे दी गई है स्क्रीन पे, तो ये मद्दे लाजिम की तशदीद। मद्दे लाजिम जैसा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बार बार मैसेजेस आने की वजह पता नहीं इतनी डिस्टरबेंस होती है, अल्लाह माफ करे। तो यानी आप जानते होंगे कि मद्दे लाजिम जो है वो किसी भी कलीमे में या किसी भी वर्ड में अगर हुर्फे मद्दा के बाद फौरन बाद अगर शद्दा आए तो उसको मद्दे लाजिम कहा जाता है, और हम जानते हैं कि हमें उसको 6 काउंट्स देकर अदा करना है और ये लाजिम है। ठीक है, तो जब भी आप कोई मद्दे लाजिम वाला हर्फ देखेंगे
जहां पर आपको जाहिर सी बात है शद्दा मिलेगा यानी हुर्फे मद्दा के बाद, तो ये शद्दा वाला लेटर जो होता है यहाँ पर हम नब्र करेंगे। ठीक है, क्यों नब्र करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि शद्दा वाला लेटर जो होता है उसमें दो लेटर्स होते हैं, दो लेटर्स हिडन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखें, वद्दौलीन, यहाँ पे लाम पर शद्दा आने की वजह से लाम में साकिन है प्लस उसमें लाम मुतहर्रिक है, तो दोनों यानी लेटर्स मर्ज होकर लाम शद्दा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लाम को पढ़ी, आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, लाम साकिन को मैंने दौल से मिलाया, फिर वहां पे मैं थोड़ा 1 और 2 सेकेंड्स का वक्फा दिया और फिर उसके बाद मैंने मुतहर्रिक लेटर को अदा किया, तो इसको हम नब्र कहेंगे। तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो देखिए कैसे यानी हमें खुद पता चलता है कि हम वहां पर इसको यानी हाईलाइट कर रहे हैं, ये नब्र वाला जो लेटर है इसको हम ज्यादा तवज्जा देकर समझिए, यानी मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि हम इसको ज्यादा कैसे कहूं मैं आपसे कि इम्पोर्टेंस देकर पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं कही अल्लाह अल्लाह, यानी मैं कौफ पे कंट्रोल भी की और फिर उसको कौफ मुतहर्रिक के साथ रिलीज भी किया, तो इसको नब्र करना कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताई कि रूल सीखने के साथ साथ, नाम याद करने के साथ साथ उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक पता नहीं हम मद्दे लाजिम जब पढ़ते थे हम ना 6 काउंट्स का हक अदा करते थे, ना हमें वो मालूम था कि ये लाजिम वाला मद है, और ना हमें ये मालूम था कि यहाँ पे नब्र की वजह से हमें जो शद्दा का लेटर है उसको सही तरीके से अदा करना है। तो ताजिंदगी पता नहीं कितनी गलतियां हमारे से होकर है, अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें अगर एग्जाम्पल देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो या और वाउ जब मुशद्दद हों, यानी जैसे आप जानते हैं हुरूफे तहज्जी के 28 या 29 लेटर्स हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 2 लेटर्स ऐसे जो या और वाउ हैं, अगर इन पर शद्दा आए तो वहां पे नब्र होगा, बस ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी है कि जो नूने साकिन या तनवीन के कायदे हैं जिसको हम इदगाम कहते हैं, ठीक है, नूने साकिन या तनवीन का कायदा जहां पर इदगाम होता है उस सूरत में नब्र नहीं होगा। क्यों? ठीक है, वो रूल ही डिफरेंट हो गया, तो उसको हम यहाँ पर नब्र के रूल में नहीं लाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इदगाम या नूने साकिन या तनवीन के कायदे के अलावा अगर कहीं पर आपको कुरान में या मुशद्दद और वाउ मुशद्दद आए तो वहां पे आप नब्र करेंगे। कैसे नब्र करेंगे? यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इय्याका, इय्याका, या पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को नब्र कहा जाता है। या को हम थोड़ा समझिए आवाज को ऊंची करके पढ़ रहे हैं, ऊंची माने लिटरली ऊंची करना नहीं, स्ट्रेस करके वहां पे हाईलाइट करके उसको पढ़ रहे हैं। आदुवुन, 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 वलियुन, वलियुन, इस तरह का। ठीक है, तो स्ट्रेस करके वहां पर हम पढ़ रहे हैं, इसी को नब्र कहते हैं। ठीक है, ये हम समझे वक्फन और वसलन में। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती चलूं, देखिए अगर किसी वर्ड में, अब फॉर एन एग्जाम्पल हम सूरह फातिहा की आयत लेते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पे अगर आप और मैं देखें, इय्याका पे अगर आप स्टॉप भी करें इय्याक करके, या इय्याका नअबुदु कंटिन्यू भी करें, दोनों सूरतों में या का जो मुशद्दद है वो नहीं चेंज होगा, वो वही वैसे ही रहेगा और आप और मैं उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये कहा गया कि वक्फन व वसलन।
ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वक्फन, यानी ये नब्र कब होगा, जब वहां पे स्टॉप होगा। स्टॉप होगा यानी समझिए आयत को आप स्टॉप कर रहे हैं, या आयत को सांस तोड़ने की वजह से, सांस टूटने की वजह से एंड कर रहे हैं आप, यानी स्टॉप कर रहे हैं, तो उसी सूरत हाल में नब्र होगा। ओके, नब्र कब होगा, जब आप उसको स्टॉप करेंगे या आयत के एंड में आपको स्टॉप करना होगा। तो दोनों सूरतों में आपको नब्र होगा, ओनली इन द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग। तो ये कब होगा, आप और मैं देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए। मद या लीन के बाद हमजा पर वक्फ करें। अगर हम पढ़ते पढ़ते अगर आयत के एंड में कोई लीन लेटर आ रहा है, या फिर कोई मद्दिया लेटर आ रहा है, या आयत के दरमियान में अगर हम लीन लेटर या मद्दिया लेटर पर सांस टूटने की वजह से स्टॉप करेंगे, तो वहां पे नब्र होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, मद या लीन के बाद हमजा पर वक्फ करेंगे। यानी आप समझिए इसको कि जस्ट जनरली अगर कहीं पे आयत के दरमियान में कोई वर्ड ऐसा आए जहां पे हुर्फे मद्दा आ रहा है या हुर्फे लीन आ रहा है और वहां पे आपकी सांस टूट गई, तो वहां पर आप नब्र नहीं करेंगे, बल्कि कोई ऐसा वर्ड हो जहां पर आपको यानी हुर्फे मद्दा या हुर्फे लीन के बाद हमजा आ रहा हो। ठीक है, तो वहीं पे आप नब्र करेंगे, यानी किस पर नब्र करेंगे, हमजा पर नब्र करेंगे। तो स्टॉपिंग की सूरत में, कंटिन्यूएशन की सूरत में नब्र नहीं होगा। अब इसको मिसाल से हम समझेंगे। अस्समा, यहाँ पे हमजा साकिना की तहकीक हो रही है। ठीक है, हमजा को आप यूजुअली ये कैसे आता है, अस्समा, अ फतहा आएगा, लेकिन आप और मैं वहां पे वक्फ करने की सूरत में स्टॉप कर रहे हैं, हमजा को साकिन दे रहे हैं, आरिद साकिन या टेम्पररी साकिन। ठीक है, तो इस साकिन देने की सूरत में हमजा पर लाइट जो झटका या जहर होगा, इसको नब्र कहेंगे। ठीक है, अस्समा, लाइट करना है, लाइट झटका, ऐसे नहीं कि अस्समा, इस तरह से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइट झटका, हल्का सा झटका देना है, उसको नब्र। अब पहला वाला जो अस्समा का था, वहां पे आप देखें हुर्फे मद्दा यानी माँ के बाद आपको हमजा साकिन आ रहा है स्टॉपिंग की सूरत में। और सेकेंड अगर देखें आप, शई में आपको देखेंगे कि ये शई अन या शई इन या शई उन कंटिन्यूशन में होगा, लेकिन स्टॉप करने की सूरत में यालीन हो रहा है और उसके बाद हमजा आ रहा है। ठीक है, तो यालीन के बाद हमजा आ रहा है, वहां पे हम स्टॉप करेंगे नब्र करते हुए। कैसे करेंगे, शई, शई। ठीक है, हल्का सा हमजा साकिन को झटका देकर स्टॉप करेंगे, इसी को नब्र कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉपिंग की सूरत में आएगा, मुशद्दद हर्फ पर वक्फ करने की सूरत में। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात गौर करें कि वक्फन और वसलन में आप पढ़े कि या शद्दा और वाउ शद्दा आए तो नब्र होगा, लेकिन रूल नंबर 2 जहां पे वक्फ जो आ रहा है, इसमें कोई भी शद्दा का लेटर रहे, या और वाउ ही नहीं बल्कि हुर्फे तहज्जी का कोई भी लेटर अगर शद्दा के साथ आए, और कंडीशन क्या है, वहां पर आप शद्दा के लेटर पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, श्रद्धा के लेटर पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, सांस टूटने की वजह से, या कोई जो कुरान के जैसे रूल्स आते हैं वक्फ के रूल्स, तो आ गया, जीम आ गया, मीम आ गया, जो छोटे छोटे लिखे होते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम आगे सीखेंगे। तो जहां पर ऐसे स्टॉपिंग रूल्स आ गए, या फिर आप सांस टूटने की वजह से स्टॉप किए, या वहां पर आयत के इख्तिताम में या स्टॉप किए, तो इन सूरतों में अगर कोई हर्फ ऐसा आए जिस पर शद्दा आएगा और आप उस पर स्टॉप करेंगे, तो वहां पर नब्र होगा। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देखें, फतुल्लुन, फतुल्लुन कंटिन्यूशन में। ठीक है, लाम
लुन हो रहा है, फतल्लुन, लेकिन स्टॉप करेंगे मैं और आप वहां पे, वक्त की सूरत में नब्र करना है, तो इसको कैसे करेंगे, फतल फतल फतल, यानी वो शद्दा की शिद्दत को देनी है और फिर स्टॉप करना है, इसी को नब्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर मुस्तक़र्रिन, अगर कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे वहां पे रॉ पे शद्दा मिसिंग है, ओके, लाइक अंडरस्टूड इट इज, ओके, मिसिंग हो गया है प्रिंटिंग में। मुस्तक़र्रुन, सॉरी, मुस्तक़र्रिन, मुस्तक़र्रिन, अगर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्टॉप करेंगे तो नब्र होगा, कैसे होगा नब्र, मुस्तक़र्र, मुस्तक़र्र, इस तरह से। ठीक है, रॉ को थोड़ा शद्दा के लेटर को स्ट्रेस करते हुए, साकिन देते हुए स्टॉप करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या ख्याल रखना है आपको और मुझे, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर वक्फ की सूरत में गुन्ना होगा, नब्र नहीं होगा। यानी हुर्फे तहज्जी के दो ऐसे लेटर्स हैं जिन पर गुन्ना होता है। ठीक है, यानी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, इनमें तो नेचुरल गुन्ना होता है, शद्दा हो या ना हो, तशदीद हो या ना हो, ये दोनों क्या है, गुन्ने के लेटर्स हैं। अब इन पर शद्दा आ जाए तो जैसे मैं आपको बताकर हूं, ये हाईएस्ट लेवल का गुन्ना है, अकमल गुन्ना है, अकमल मातकून का गुन्ना है, तो वहां पर गुन्ना होगा, नब्र नहीं होगा। तो नून और मीम के अलावा बाकी जितने 27 या 26 लेटर्स हुर्फे तहज्जी के हैं, अगर इन पर शद्दा है और वहां पे आप शद्दा के लेटर को स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, नब्र करके स्टॉप करेंगे। ठीक है, नब्र का रूल अप्लाई होगा। सेकंड, इसमें बात क्या ख्याल करनी है, हुरूफे कलकला मुशद्दद पर वक्फ में नब्र नहीं होगा। एक और पॉइंट इसमें क्या आ गया, जैसे खलखला के लेटर्स हैं उस पर अगर शद्दा आए और वहां पर हम वक्फ करें तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट खलखला होगा, खलखला अकबर होगा। ठीक है, खलखला अकबर होगा, तो वहां पे भी नब्र नहीं होगा बल्कि खलखला होगा, जिसको मैं लास्ट क्लास में भी आपको एग्जाम्पल बताई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, व तब। समझ नहीं आ रहा है नब्र, इतना यानी वाजे खुले तौर पर 2 क्लासेस से समझा रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं समझ में आया आपके तहुरा, आप मुझे पर्सनली मैसेज। तो इस तरह का यानी शद्दा के लेटर्स पर, सॉरी, खलखला के लेटर पर अगर शद्दा आए या गुन्ना के लेटर्स पर शद्दा आए, नून या मीम मुशद्दद, तो इन पर नब्र नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी लेटर्स हुर्फे तहज्जी के हैं जिनकी जो जगह पर हम स्टॉप करेंगे वहां पर इन पर नब्र होगा। ठीक है, तो ये है। थर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो है वसलन, यानी कंटिन्यूएशन में नब्र होगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन में नब्र होगा। अब देखते हैं कौन सा है, वाउलीन जब वाउ मुशद्दद में मुदगम हो, वाउलीन जब वाउ मुशद्दद में मुदगम हो। अब ये कैसे है, मिसाल के तरीके से हम समझेंगे। मिसाल यहाँ पे क्या दी गई है, असौ व कानू, असौ कानू, यहाँ पे आप फर्स्ट लेटर अगर फर्स्ट वर्ड अगर आप देखें असौ, वहां पे वाउ लीन हो रहा है, वाउ साकिना से पहले जबर या फत्था आ रहा है, तो ये ववे लीन है। तो ववे लीन के बाद वाला लेटर अगर आप देखें वकानू में वाव पर मुशद्दद आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम इसको जानते हैं, इदगाम मुतमासिलेन में ये पढ़े थे। ठीक है, इदगाम मुतमासिलेन सगीर में मैं आपको बताई थी, सेम लेटर्स में अगर यानी एक पहला लेटर भी वही है और दूसरा लेटर भी सेम है, तो दोनों लेटर्स में मुदगम होगा, तो इसको इदगाम मुतमासिलेन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो मुतमासिलेन लेटर्स हैं, लेकिन उनमें शर्त ये है कि वो लीन वाले लेटर्स हों। शर्त ये है कि लीन वाला लेटर, लीन वाला, अब यहाँ पे लीन वाले कौन से हैं, या है या फिर वाव है, ये दो ही लीन लेटर्स हैं। इसके अलावा दूसरे मुतमासिलेन यानी इदगाम मुतमासिलेन कब होगा,
तमाम लेटर्स, अगर मीम साकिन मीम मुशद्दद में यानी मुदगम हो रहा है, वाउ वाउ साकिन वाउ मुशद्दद में मुदगम हो रहा है, इसी तरह तमाम लेटर्स वो मुतमासिलेन हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहला वर्ड वाउ लीन पर खत्म हो, वाउ साकिन हो वहां पे, और इस पे दो ही वाउ लीन के लेटर्स हैं, या और वाउ साकिन से पहले अगर जबर आए तो, ठीक है। तो वाउ लीन जब वाउ मुशद्दद में मुदगम हो, तो कंडीशन यहाँ पे क्या बताई जा रही है, या लीन जब या मुशद्दद में मुदगम हो, ये नहीं बताया गया, ठीक है। लीन लेटर्स में भी सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, जब वाउ लीन वाउ मुशद्दद में मुदगम हो, सिर्फ वहीं पे नब्र होगा, सिर्फ वहीं पे नब्र होगा, ठीक है। क्योंकि या का रूल वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैं प्रीवियसली बताई आपको कि जब या मुशद्दद आएगा तो उससे पहले नून साकिन या तनवीन होगा, और वहां पे आपको रूल इदगाम का हो जाएगा, ठीक है। तो नब्र कब होगा, जब वाउ लीन वाउ यानी मुशद्दद में मुदगम होगा। जैसा कि एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, असौ व कानू, इत्तकू व आमिनू, इत्तकौ व आमिनू, इत्तकौ व आमिनू, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस करके हम उसको नब्र कहा जाएगा। फिर लास्ट इसमें जो है वसलन में कंटिन्यूएशन में दो अलिफ खाली एक साथ हों, दो अलिफ खाली एक साथ हों। अब ये कैसे होगा, नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स पर आप देखें, क़ौल अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह नमल की आयत है, क़ौल अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देखेंगे कौला में जो अलिफ आ रही है, ठीक है, अलिफ मद्दा है, तो ये अलिफ और फिर अल्हम्दु के स्टार्ट में हमजतुल वसल आ रहा है, तो ये दोनों अलिफ खाली हैं, इन पर कोई हरकत नहीं है, ठीक है, इन पर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि एक तो हमजतुल वसल है, दूसरा तो मद्दिया अलिफ है। तो मद्दिया अलिफ पे आप और मैं जानते हैं कि उस पर साकिन नहीं लिखा होता, ठीक है, वो साकिन वाला लेटर भी नहीं है, मुतहर्रिक वाला लेटर भी नहीं है। तो जब भी कोई यानी दो लफ्ज में अगर दो अलिफ आ रहे हैं खाली, तो वहां पे नब्र होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें आप आयत सूरतुल आराफ की, फलम्मा ज़ाक़श-शजरता, ज़ाक़श-शजरता, यहाँ पे क़ौ की अलिफ और अशजरता में हमजतुल वसल की अलिफ, ये दोनों काली अलिफ हैं, तो यहाँ पे नब्र हो रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट अंडरस्टूड कैसे हो रहा है, क्यों ज्यादा तहकीक में ना जाएं। जैसे कि मैं आपको बताई कि पढ़ते वक्त हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, बस आज इसका नाम जान रहे हैं और समझ रहे हैं, बस इतना है। यू शुड नॉट गेट इनटू एनी डिटेल्स के कंफ्यूजन हो रही है, कैसे यहाँ पे नब्र हो रहा है, खाली दो अलिफ आए तो कैसे नब्र हो गया, ये सब यानी क्या बोलते हैं, कील और काल करना। जितनी जरूरत है उतना इल्म हासिल करना, और वो इसलिए हासिल करना ताकि हम उसको इस्तेमाल करते हुए चलें, कुरान में पढ़ते हुए चलें। ये नहीं कि बाल की खाल, कील और खाल किसको कहा जाता है, फिजूल में बाल की खाल निकालना, मकसद सिर्फ ये कि सामने वाले को भी परेशान करना और खुद भी परेशान होना, ठीक है। तो ये उम्मत मोहम्मदिया को मना किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये बहुत किया करती थी मूसा अलैहिस्सलाम को सताने के लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट जो है वस्तबक़ुल बाबा, वस्तबक़ुल बाबा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें औ अलिफ मद्दा आ रही है, अल बाबा के पहले हमजतुल वसल, तो दोनों अलिफ एक जगह जमा हो रहे हैं जो कि खाली हैं, इन पर कोई हरकत नहीं है, तो यहाँ पे नब्र हो रहा है। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह यानी समझाने के बाद आप लोगों को समझ में आया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी पेशी हुई है मुझसे, अल्लाह माफ करे, और आप लोग पर्सनली मुझे यानी मैसेज करके पूछ लिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा जो भी डाउट होगा क्लियर करके समझा दूंगी, ठीक है। क्योंकि बार बार के दूसरे स्टूडेंट्स परेशान हो इस चीज को लेकर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम जो आज सीखेंगे
वक्त जितना है उसकी मैं सोची कि नब्र का जल्दी हो जाएगा, लेकिन चूंकि थोड़ा डिटेल से और तसल्ली से मुझे समझाना था, इसीलिए इसी पे यानी हमारा इतना वक्त हो गया। चले, मैं जो आज दूसरा जो आप लोगों को सिखाने वाली थी वो लेवल्स ऑफ तफखीम, जितना होगा इंशाल्लाह कंटिन्यूएशन अगली क्लास में इंशाल्लाह रहेगा, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला एग्जाम्पल आप चाहते हैं, ठीक है। قال الحمد لله فلما زاغ الشجرة واستبق الباب، ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, लेवल्स ऑफ तफखीम देखेंगे आप और मैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये सब चीजें, ये बहुत बारीकी वाली चीजें हैं जो मैं यानी वक्तन फौक्तन जैसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने टीचर के पास, अपने 2 या 3 टीचर से जैसे जैसे मैं सीखती जाती हूँ, मुझे बस ये शौक होता है कि मैं आप लोगों से वो शेयर करती जाऊं, सिखाती जाऊं, ताकि यानी आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो जाए। स्क्रीन नहीं आ रही है, मुझे हैंड रेज कर कर बताएं, कोई मैसेज कर दें। आपको पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या? प्लीज कोई बताएं। जी, तो आप जो सिस्टर को स्क्रीन नहीं आ रही है, जीनत आप क्लास को लीव करें और फिर एंटर करें, शायद कुछ मसला आपका नेट का होगा। ठीक है, तमाम दीगर बहनों को यानी दिख रहा है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि तफखीम यानी आप जानते हैं कि मुखफ़्फ़म यानी मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स 7 हैं, ठीक है। मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़े तहज्जी में से 7 ऐसे लेटर्स हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। इनमें भी 4 ऐसे लेटर्स हैं जो मैं सिफात में आपको बताई कि वो बहुत ज्यादा मोटे पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह सिफात का ना मैं आपको खुलासा की थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाई। आगे जब मैं यानी ये जो कंप्लीट करूंगी तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर, मुझे सिफात को सिखाना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से जहन में बैठ जाए, क्योंकि सिफात तजवीद का बहुत बहुत जरूरी हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम हर्फ को अप्लाई करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो तफखीम के जैसा और आप और मैं जानते हैं कि 7 लेटर्स हैं, यही मैं और आप पढ़कर हैं, इसका मजमुआ है, ठीक है, जिनको हुरूफे इस्तिआला भी कहते हैं। और 4 जो हैं तो, व, सौद और दौद को हुर्फे इतबाक भी कहते हैं सिफात के हिसाब से, ठीक है। तो 7 लेटर्स हैं। तो अब आप इतना जानते थे, लेकिन आज आप और मैं ये जानेंगे कि जैसे मैं आपको बताई पिछली क्लासेस में कि गुन्ने के 5 लेवल थे, ठीक है, गुन्ने के 5 या 4 लेवल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह तफखीम के यानी मोटे पढ़े जाने के भी लेवल्स हैं, ठीक है, इसके भी लेवल्स हैं, जिसका मैं खुलासा इंशाल्लाह आज की क्लास में और अगली क्लास में कंप्लीट करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चीजें आप लोग याद रखें कि इनमें भी है ना 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। कैसे कहेंगे 2 स्कूल ऑफ थॉट? माने यानी राजे जो तजवीद के इसमें जो 2 स्कूल्स या 2 मदरसे मदारिस ऐसे हैं जिनका यानी दुनिया भर में इन्हीं मदारिस का क्या बोलते हैं, इन्हीं मदारिस की टीचिंग्स या जो भी ये सिखाते हैं ये लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 हैं, एक है अहलुश शाम, ठीक है, मदरसतल अहलुश शाम, यानी अहले शाम का जो आकर आपको कहाँ पर है, फलस्तीन में है, ठीक है। फलस्तीन, अहले शाम, शाम तो फिलस्तीन है, ठीक है। तो फलस्तीन में जो है, यहाँ पर जो मदरसा है, दुनिया भर के आलिम जो हैं तजवीद के, या आपको ये मदरसे से लेंगे
یا پھر ایک اور مدرسہ جو اہل مصر کے نام سے مشہور ہے، مدرسۃ اہل مصر، ٹھیک ہے. یہ دونوں ایسے مدارس ہیں جہاں پر تجوید کے یا جو بھی اس کے رولز وغیرہ ہیں یہ لیے جاتے ہیں، یعنی یا نہیں تو ان کا فالو کیا جائے گا یا نہیں تو ان کا فالو کیا جائے گا. مدرسۃ الاہل الشام کا لیا جائے گا یا مدرسۃ الاہل مصر کا لیا جائے گا. اب یہ دونوں میں سے کسی ایک مدرسے کا اگر آپ اور میں لے کر قرآن کو اس طرح سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو دونوں مدارس کا لے کر چلنا ہے، بس ان میں سے ایک مدرسے کا ہمیں ضروری فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا جس کو انگلش میں ہم کہیں گے کہ ٹو ڈفرنٹ مدرساز اور ٹو ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہیں. تو ایک مدرسہ جو ہے وہاں پر جیسے مدرسۃ الاہل الشام میں، ٹھیک ہے، جو فلسطین میں ہے، مدرسۃ الاہل الشام، تو یہاں پر تفخیم کا جو لیولز ہیں یہ 5 بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تفخیم کے یہ 5 لیولز کو فالو کرتے ہیں. اور مدرسۃ الاہل المصر میں یہ تفخیم کے 3 لیولز کو فالو کرتے ہیں. اب یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اوکے. میں بتاؤں گی کیسے یہ دونوں سیم ہے، لیکن بس فرق تھوڑے سے فرق ہیں ان میں جو کہ ہمیں سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. بس میں جیسے بتائی آپ کو، یا آپ قرآن کو پڑھتے وقت تفخیم کرتے وقت لیٹرز کو یعنی موٹا کر کے پڑھتے وقت آپ اہل شام کا لے لیں یا اہل مصر کا لے لیں، دونوں صحیح ہے. لیکن یہ دونوں میں سے ایک کا تو آپ کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اپلائی کرنا ہے پڑھتے وقت، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے الحمدللہ. تو ایک کے حساب سے 3 لیولز ہیں، ایک کے حساب سے 5 لیولز ہیں، دونوں الحمدللہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو آج جو خلاصہ کروں گی وہ ہوگا مدرسۃ الاہل المصر کا، ٹھیک ہے. مدرسۃ الاہل المصر کا، کیونکہ ان کے 3 لیولز تفخیم کے 3 لیولز یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بس اس کو کمپلیٹ کروں گی، اور یہ کمپلیٹ بھی نہ ہوا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. تفخیم کا معنی، ہاں، موٹے لیٹرز یا لیٹر کو موٹا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھنا. تفخیم لیٹر مانے موٹے لیٹرز. اب موٹے لیٹر مانے وہ لکھنے میں موٹے نہیں ہوتے، دیکھے جانے میں موٹے نہیں ہوتے، لیکن ان کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تفخیم لیٹر، اب یہ پی ڈی ایف انگلش میں ہے، پریشان نہ ہو. مجھے اس کا پی ڈی ایف بنانے کے لیے بس یعنی انگلش میں مجھے آسانی ہوئی بنانے کے لیے، 2 اردو میں اور انگلش میں نہیں ہوا، تو میں آپ کو اردو میں انشاءاللہ میں نوٹس بھیج دوں گی، ٹھیک ہے. پریشان نہ ہو، بس میری باتوں پر جو میں سکھاؤں گی اس پر توجہ کریں، غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. بعد میں میں اردو میں بھی سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو لیول ہے یعنی 3 لیولز جیسے میں بتائی مدرسۃ الاہل المصر کے، ٹھیک ہے. تو اس کا فرسٹ لیول آف تفخیم جو ہے وہ ہے تفخیم لیٹر پر اگر کوئی بھی، یہ تفخیم کے جو 7 لیٹر ہیں، یہ 7 لیٹر میں سے کوئی لیٹر میں اگر یعنی فتحہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی تفخیم کے لیٹر پر فتحہ آئے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. یہ پہلا تفخیم کا لیول ہے، یعنی موٹا پڑھا جانا. تو یہ کیسے موٹا پڑھا جانا؟ جیسے میں آپ کو بتائی کہ غنہ کے لیولز میں سب سے پہلا جو غنہ کا لیول ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد کا، یعنی 2 کاؤنٹس دے کر ہی اس کو پڑھیں گے، لیکن لیول اس کا ہائی لیول ہے. اسی طرح سے یہاں پہ جب تفخیم لیٹر پر کوئی بھی، یہ 7 لیٹرز میں سے کوئی بھی تفخیم لیٹر پر اگر آپ کو فتحہ آئے تو وہاں پر آپ کو تفخیم یعنی اس لیٹر کو صحیح سے موٹا کر کے ادا کرنا ہے پڑھتے وقت، ٹھیک ہے. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں فرسٹ لیٹر جو ایگزامپل دیا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں موٹا لیٹر ہے، اس کے بعد الف یعنی الف مدہ کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ کا لیٹر ہے، لیکن لیٹر جو 7 لیٹر، اللہ خیر فرمائے، آپ نہیں جانتے کیا 7 لیٹرز یہ؟ ٹھیک ہے، اس کو میں بتاؤں گی آپ کو. خ صاد، ٹھیک ہے. ایک تو ہے تو و صاد ضاد
खौ, गैन, ऑफ। ठीक है, ये 7 लेटर्स हैं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, तो ये 7 लेटर में से अगर किसी भी लेटर पर फतहा आए तो हम उसको उसका हक अदा करते हुए, हाँ, हुरूफ इस्तिआला या हुरूफ मुस्तिआला, ठीक है, तो इसको अदा, हाँ हाँ जी, जी हाजिरा, जज़ाकल्लाहु खैर। तो यही है, प्लीज मुझे थोड़ा यानी दरमियान में मैसेजेस में डिस्टर्ब ना करें, वक्त खत्म हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खौ जो है वो हेवी लेटर माना जाता है, ठीक है। अब जब भी कोई हेवी लेटर पर फतहा आए तो हम उसको मोटा करके, यानी ज्यादा अच्छे से करेक्ट से मोटा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, खौ पहले जो एग्जाम्पल में आ रहा है वो हुर्फे मद्दा के साथ आ रहा है, और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो बगैर हुर्फे मद्दा के है, सिर्फ डायरेक्टली खौ पे आप जबर या फतहा देख रहे हैं। दोनों सूरतों में ये क्या कहते हैं कि इसकी लेवल एक ही है, ठीक है, इसकी लेवल पढ़ने की एक ही है। कैसे? खौइफीन, 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 हम इसको कैसे खाइफीन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि ये हुरूफे इस्तिआला हैं, मुखफ्फम लेटर्स हैं, इनको मोटे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे खा नहीं कहेंगे, खौ कहेंगे, खौ, खौ, ठीक है। खौइफीन, खज़ाइनु, 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 इस तरह का, ठीक है, मोटा करके पढ़ना। तो फर्स्ट लेवल में कौन सा आता है? फतहा। जब भी किसी मोटे हुरूफ पर फतहा हो तो वो हाईएस्ट लेवल में आएगा, फर्स्ट लेवल में आएगा पढ़ते वक्त। इसको हम खाइफीन, खज़ाइनु इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, खाइफीन, खज़ाइनु इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेवल है वो है तफखीम लेटर पर अगर अगर कोई भी हर्फ आए, यानी 7 मोटे हुरूफ में से अगर कोई एक हर्फ पर दम्मा हो या पेश हो, ठीक है, दम्मा हो या पेश हो, तो यहाँ पर दूसरे लेवल की तफखीम होगी, दूसरे लेवल की तफखीम होगी। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? उखरीजत, उखरीजत, उख, 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 उख या उख, उख ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। खौ को उसका हक अदा करते हुए, फिर दम्मा है तो उसका हक अदा करते हुए इसको सही से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उखरीजत, उखरीजत, खुरूजू, 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 ठीक है। तो ये लेवल ऑफ तफखीम में 2 नंबर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेवल, तीसरा लेवल है, यानी तफखीम लेटर या तफखीम का हर्फ हो और उससे पहले कसरा हो या उसके नीचे कसरा हो। गौर से सुने, तफखीम का लेटर है, उससे पहले वाले लेटर पर कसरा हो या उसी तफखीम के लेटर पर कसरा हो। जैसा एग्जाम्पल में अगर आप देखें, खौ तफखीम का लेटर है, इसके नीचे कसरा आ रही है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खितौबा, खितौबा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है खौ पे साकिन होगा, जो कि आपको इसमें नहीं है, ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। खौ से पहले वाले लेटर सीन पर कसरा है, ठीक है, खौ पे कसरा नहीं है, उससे पहले वाले लेटर सीन पर कसरा है। तो इसको भी हम खौ को क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे, लेकिन ये थर्ड लेवल का मोटा होगा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे कसरा आ रही है या हेवी लेटर से पहले वाले लेटर के नीचे कसरा आ रही है। तो द लेवल कसरे यानी क्या बोलते हैं, तफखीम का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड का जो है सिखरिया, 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 आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिखरिया, सिखरिया इस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ,
खौ को मैं बहुत मोटा नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे भी खितौबा, खितौबा, मैं खौ को मोटा करके नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि तफखीम का लेटर है, लेकिन चूंकि इसके नीचे या इसके पहले कसरा आ रही है तो मैं इसको बहुत ज्यादा मोटा करके नहीं पढ़ूंगी, बल्कि उसका हक अदा करते हुए एक बैलेंस्ड तौर पर पढ़ूंगी। खितौबा, खितौबा, सिखरिया, सिखरिया, ठीक है, इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहले स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। तो यहाँ पर दीगर एग्जाम्पल्स आप और मैं देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला लेवल जैसा कि मैं आपको बताई, यहाँ पर आप देखें, ये किसी भी मोटे हर्फ के साथ, किसी भी इस्तिआला लेटर के साथ अगर हुर्फे मद्दा आ रहा है, यानी अलीफे मद्दा, हुर्फे मद्दा माने अलीफे मद्दा आ रहा, कंडीशन वोवे मद्दा याए मद्दा नहीं, ठीक है। किसी भी मोटे हर्फ के साथ अगर अलीफे मद्दा आ रहा है तो उसका लेवल, और यानी फतहा हो उसके ऊपर, मोटे लेटर पर फतहा हो और अलीफे मद्दा, जाहिर सी बात है फतहा ही होगा। सेकंड जो है, डायरेक्टली मोटे लेटर पर फतहा है, अलीफे मद्दा नहीं है, डायरेक्ट मोटे लेटर पर फतहा है। और तीसरा देखें, मोटा लेटर साकिन है और उससे पहले वाले लेटर पर फतहा है। तो तीनों सूरतों में आपको ये हाईएस्ट लेवल ऑफ तफखीम में आएगा, पहला लेवल आएगा, और यहाँ पे आपको मोटे लेटर को अच्छे से मोटा करके उसका हक अदा करते हुए पढ़ना है। जैसा कि मैं इसको पढ़ के बताऊंगी आपको। खौइफीन, खौज़ाइनु, मखतूम, मखतूम। आप मेरी खौ की अदायगी देखें, ठीक है। मैं मखतूम, मखतूम, इस तरह से मैं कलकला भी नहीं कर रही हूँ, खौ को बारीक भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं खौ को उसका हक अदा करते हुए लेवल 1 की ये खौ पे, खौ से पहले फतहा आ रहा है, खौ के ऊपर फतहा आ रहा है, या खौ जो है यहाँ पर हुर्फे मद्दा में आ रहा है, अलिफ मद्दा से पहले आ रहा है। तो तीनों सूरतों में मैं क्या करूंगी, खौ को मोटा करके तफकीम करके हाईएस्ट लेवल ऑफ तफकीम या लेवल 1 की तफकीम देकर मैं पढ़ रही हूँ। फिर दोबारा से मैं इसके एग्जाम्पल को पढ़ूंगी। खौइफीन, खाइफीन नहीं पढ़ी मैं, ठीक है। यही नोट करना है आपको कि लेवल कैसे इसको तफहीम का नंबर 1 लेवल दिया गया। मैं इसको खाइफीन नहीं पढ़ी, बल्कि मैं इसको पढ़ूंगी खौइफीन, खौ, खौ, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह वो है खज़ाइनु, खज़ाइनु। मैं खज़ाइनु, खज़ाइनु इस तरह से नहीं पढ़ी, ठीक है। मोटा करके उसको उसका लेवल देकर, क्योंकि इस पर फतहा है, अदा करते हुए पढ़ी। अब लास्ट का जो है मखतूम, मैं मखतूम या मखतूम इस तरह से नहीं पढ़ी। मैं ना कलकला की, ना मैं खौ को लाइट लेवल पढ़ी, मैं कलकला भी नहीं की और मैं खा को लाइट करते हुए भी नहीं पढ़ी, बल्कि इसको मैं मोटा पढ़ी और मखरज को कंट्रोल करते हुए पढ़ी, कलकला नहीं होने दिया, ठीक है। मखतूम, मखतूम, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसी में आप देखें, अल कमर, अल कमर, कौला, काला नहीं कहा, अल कमर, कमर नहीं कहा, ठीक है। कमर, कमर, रॉ को भी मुकफ्फम पढ़े, मीम पर फतहा आ रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको मिलाकर भी पढ़ेंगे, यानी साकिन नहीं करेंगे, रॉ को भी कैसे पढ़ेंगे, अल कमरू, अल कमरू, मैं का नहीं पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो है कौला, कौला, अलिफ मद्दा के साथ इस्तिआला का लेटर आ रहा है और उस पर फतहा है, ठीक है। कौला, कौला, मक़तन, मैं कलकला की, क्यों, खौफ जो है वो कलकला का लेटर है, इसलिए मैं
साकिन वाले लेटर पर कलकला की, लेकिन कौफ को तफखीम के हिसाब से सही अदा की। मैं मक़तन मक़तन नहीं पढ़ी, इसको बारीक नहीं की। मक़तन मक़ 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 नहीं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है तफखीम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल आप देखें, वर्रासिखूना 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 खू खू खू, इसका आप देखें ये इतना हेवी नहीं होता, इतना मोटा नहीं होता जितना फतहा के लेटर्स पर तफखीम होती है। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं पढ़ते वक्त। वर्रासिखूना उखरिजत उखरिजत उखरी उख उख उख, बहुत मोटा नहीं की मैं। उखरिजत उखरिजत, साकिन को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है, साकिन वाला हर्फ है और यहाँ पे कलकला नहीं करना है, हिलाना नहीं है साकिन वाले लेटर को, लेकिन तफखीम के सेकेंड लेवल पर पढ़ना है। खुरूज खुरूज खुरूज, ठीक है। तो इस तरह का। अब लेवल 3 का देखते हैं हम। सिबगतन सिबगतन, सौत पे हुर्फे इस्तिआला में से है लेकिन जेर है, तो मैं सौ सुई सिबगतन इस तरह से नहीं पढ़ी। सिबगतन सिबगतन, थोड़ा सा मोटा की, तफखीम लेटर है ये इसलिए क्योंकि सीन और सौद में फर्क जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कसरा का यानी थर्ड लेवल का तफखीम हो रहा है तो हम इसको फ्लैट कर देंगे और सीन की तरह अदा करेंगे, नहीं। हमें पता चलना चाहिए कि हम सौद पढ़ रहे हैं और ये मोटा लेटर है, लेकिन लेवल ऑफ तफखीम यानी मोटा मोटा करके पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कसरा आ रहा है या जेर आ रहा है। सिबगतन सिबगतन, ठीक है। व आखी, यहाँ पे मैं व आखी करके नहीं पढ़ रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड लेवल है और कसरा है इसके नीचे हेवी लेटर पर, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? व आखी खिताबा खिताबा मिसबाह 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 सिखरिया सिखरिया, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि बहुत कंफ्यूज होने वाला है। पढ़ने पर यानी गौर किए होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि फतहा पर थोड़ा ज्यादा तफखीम का लेवल हाई है, दम्मा पे थोड़ा कम है और कसरा पे उससे भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स जो मैं और आप आज सीखे वो क्या थे? मदरसतुल अहलुल मिस्र के, ठीक है। ये याद रखना है और मैं इसको इंशाल्लाह उर्दू जब लिखूंगी उर्दू नोट्स तो उसको लिखकर भेजूंगी आपको। तो बस याद रखें मदरसतुल अहलुल मिस्र के हिसाब से ये 3 लेवल्स कंसिडर किए जाते हैं तफखीम के, ठीक है। यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। हमारे पास 8 मिनट्स हैं, 8 मिनट हैं सिर्फ। 8 मिनट में अगर किसी को सवाल करना है हैंड रेस कर लें, बाकी अगर नहीं पूछ सके, पूछना था कुछ, डाउट था कुछ, तो आप मुझे प्लीज पर्सनली मैसेज कर लें, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबीना सिस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें।